So I don't know whether the introductions is going to be correct or not, because as per your uh, the message which you have sent it me in the WhatsApp, based on that I can see here you are the founder and president of. Telangana Geek and Platform Workers Union, Huh. co-founder and National General Secretary, Indian Federation of App-Based Transport So Workers. could you explain us what exactly is this one all about? We are, the Geek and Platform Workers was organized all the app-based workers like Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart. App-based platform. Yes. Okay. Hmm. And Indian Federation of App-Based Transport Work, that is a network of federation who was small associations and unions in bulk in one place. That federation should be umbrella to all the small unions, associations. That is the Federation of Indian Federation of App-Based Transport Workers. Okay. Good evening, guys. Viewers, that today we have the founder president, uh, Mr. Sheikh Salahuddin. I'm right. Okay. Yes. So welcome to our broadcast. The reason behind calling you today because nowadays the youth everyone is focusing on there's a huge market of gig actually, right? So how do you think that this is a secure market for upcoming youth? See, one type, all the platform companies said that created job creators, okay, but the platform companies is not a job creators, okay. The platform companies is the job creator. What about the government of India? That's true. Government of India has multiple times said we are the creating of the jobs from the different platform companies to invite and the giving the subsidies, giving the opportunity to platforms to grow, develop the nation, right? But platform companies said the we are of the job creator. That is not true because you can see only one platform that Dipender Goyal said हमारे पास तो प्लेटफॉर्म पे आने का भी उतना ही है जाने के लोग भी है द डीएक्टिवेशन शुड बी More. यस So there is no secure kind of job at all. yes because it is not job guarantee na. These platforms are not only job created but who is the job guaranteed, so that No is a one is big there. issue. बट वो गैप है तो वर्कर्स कहीं पे भी सेफ नहीं है, तो उसके लिए बोल रहे कि वर्कर की सेफ्टी सिक्योरिटी और जॉब इम्पोर्टेंट है। यू आर नॉट ए जैसा कि आप हर बार ये बोल के गवर्नमेंट को थ्रेट नहीं लाना कि वी आर द जॉब क्रिएटर्स, ओके। आप जॉब क्रिएटर भी होंगे तो मारेंगे बट उस जॉब को आप गारंटेड जॉब दे दो, वर्किंग आवर्स, सोशल सिक्योरिटी, उनके बेनिफिट्स, वो सब देना पड़ता। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म कंपनीज एंड गवर्नमेंट। बट यू आर दोज ऑल थिंग्स विल बी द एग्जिट। आप मार के सिर्फ हम लोग बोल रहे कि हाँ ये चीज़ ये फलाना चीज़ हो रहा, दैट इज नॉट ट्रू। Okay. तो आगे बढ़ने से पहले like sir please introduce yourself and tell us about your journey from starting to GPW, right, and to leading an IFAT, the nationalities as well. So See, the Telangana Gig and Platform Workers Union is the founder president. This is the 2022 we have to form this trade union act. Under the trade union act, this should the all the gig and platform workers we are organized like Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, and urban company workers. Those simply said platform based companies. Those all are we have to create the awareness for the social security, everything we have to the union should be workers raising the workers voice. That is very important. That's why we have to Telangana Gig and Platform Workers Union. And IFAT, Indian Federation of App-Based Transport Workers. I am the co-founder and nation general secretary. This is the pan-India organization. This is the federation. This federation, the small associations and unions, state-wise, in this same umbrella, we have to, the same thing there also. We have to one big umbrella because we have to connect and connectivity. We have to create the awareness from the workers' voice, from raising to the platform companies and government, state governments and central government. That's why we have to, the foundation from the federation to be started on 2019, Indian Federation of App-Based Transport Workers. awesome. So what like inspired you to fight for a gig platform based worker? And was there any personal incident?
Because of that reason, you have decided to go ahead and start this. No, I am one of the driver. Still now I am the working with the platform companies. That's why we have to started the, I know very well about the problems, realities of the platform companies too. Drivers are facing the problems like Ola, Uber, Rapido recently has come. That time has not Rapido till Correct, correct. 2014 and Rapido was 13. not there a few years back. Yes, in that times we have to back. That time I have especially that time in ambassador. No, and especially I'm joining that platform company. That time I will take the the shift from the Indica ambassador to Indica. Correct, correct. Okay, and I closely to work the platform companies. Some platform companies, my ID should also block. That time we have to, the all the platform companies said, the some multiple groups going on the strike. That is a painful. The paper when we can open some platform companies has giving the statement. Now that statement should be gone because we are all on one umbrella. That time we have to elected joint action committee chairman. I am the Telangana State Taxi and our joint action committee. We have to all unions and associations, national state trade unions also participate in the one joint action committee. JAC. We have the chairman and last 7.5 year. Recently, I have to resign and I'm the co-convener on So the. is there any election base or like some person has to go ahead and select by our own? Uh, Or otherwise some elections happens and then they make a like person all as the the 20 chair. unions and associations should be Okay. decided who can the chairman and convener co-convener. The Telangana movement also very well about the JOC, joint action Correct, committee. correct. Here some associations unions will be there. Some has trade unions like CITU, AITU, AITUC, and some independent unions and some associations we have in one umbrella in joint action Okay, so committee. it's a very, very big umbrella, I mean Yeah, to say. in So there Telangana. are there are like not only one decision maker. There are Yes. multiple people in your Yeah, chain. not only that is the one responsibility as a chairman, as the convener, co-conveners, and the all the vice presidents will be also will be there. Those Mm. all are take the decisions about the platform companies and social security from the workers. Yeah, obviously, I try to fulfill my the position what we can the chair to address the problems workers issues to be raising by the government and state governments and central governments and platform companies. That's way that time we have to the multiple strikes and everything will be there on state in Got it, Telangana. got it. So how difficult was it to build an union for a gig? Like, See, lot of challenges nowadays. I think you Union might be means, getting pressures from the government as well, yeah. from the lot of like the like taluka or district level MLAs and MPs. There might be people also like always calling you saying that if they are supporting you, generally happens in the market, right? If somebody is supporting you, they will always ask us to bring 100 people. So are you facing this type of issues in this market, or how is that? Not political level, but definitely the the department should be the when we have to create the union, that time we have to facing the problem. The formalities will be very high level of Okay, got it. formalities. That's what like Dist- my question was the same thing. Like did you feel any difficulties while yeah, doing? district level we have go and workers organize and take back to city and verifications and everything. The 2.5 years waiting time from the trade union I have to got after that got the So union now federation. I'm gonna ask you a question on gig economy and the reality of workers, right? Gig economy, because what is the real condition of gig workers nowadays? Because in your gig, I think the delivery boys also are coming, right? Even cab drivers also are there, even auto drivers also are there, and there are freelancers as well. And I think even urban uncle, like there are so many uh, people are there like who's work on a daily basis, right? So how is their economic condition, the real condition of the gig worker? Nowadays gig workers facing lot of problems. One the major problem, very well about the wages. Not fair wages will be from driver, delivery boy, urban company worker, and freelance everywhere. That's why we are asking not less than minimum wages. One thing, at least per order.
like delivery boy per order, per kilometer, per minute. You Wow. have to calculation from the wage. That and another, even though delivery not drivers also we are asking per kilometer, waiting time per minute. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. आई थिंक आई शुड गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन इन हिंदी, और इफ यू रिक्वायर देन लाइक आई माइट आस्क यू इन तेलुगु ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैं बहुत सारे जो कैब ड्राइवर्स हैं उनसे मैं जब मिला, तो वो बोलते हैं कि हमसे गाड़ी तो चलवा लेते हैं ये ओला उबेर वाले, हम्म। ठीक है. अब एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखिए. जी। ये जो कंपनीज में होती है, जो कॉर्पोरेट में होती है, एज अ वेंडर के तौर पे जो टैक्सीज चलती है, उनको किलोमीटर के हिसाब से अराउंड दे माइट बी गेटिंग विद इन द सिटी लाइक 1,000 रुपीज पर राइड और समथिंग, करेक्ट. लेकिन यदि अगर ओला उबेर या रैपिडोज में वगैरह होते हैं, तो यहाँ से यदि अगर आप 5 किलोमीटर के दरमियान कहीं जा रहे हो तो 100, 150, 200 रुपए का आता है. और उन लोगों का इन्वेस्टमेंट तो लाखों रुपए में होता है. तो ये कैसा न्याय है उनके उनके लिए? आप नहीं क्या कर रहे हो? देखिए, पूरा जो मार्केट का कंट्रोल है प्लेटफॉर्म कंपनीज लेके बैठे हैं। चाहे ओला, उबर, रैपिडो, जो भी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कंपनीज हैं, ये एग्रीगेटर कंपनीज करते क्या बोले तो एक पीछे का जो मैकेनिज्म है वो एल्गोरिथम डिसाइड करता करेक्ट. है। सॉफ्ट मेरे को कोडिंग. फेयर कौन, कितना आना, इंसेंटिव मिलना नहीं मिलना, बुकिंग मेरे को मिलना या लीज व्हीकल को मिलना है, या लीज व्हीकल को पैसा ज़्यादा मिलना है या मेरे को कम मिलना है, और मेरे रेट का तय क्या क्या एल्गोरिथम डिसाइड करता। मेरा बॉस कौन है बोल के अगर जब मैं पूछा तो मेरा बॉस मेरे को ही नहीं मालूम, मेरा फ़ोन है। क्यों मेरा फ़ोन है मेरा बॉस? बिकॉज मैं मेरे बॉस को देखा ही नहीं। हु इज़ द सीईओ? आई डोंट नो। वेयर इज़ दैट सिटिंग, वेयर इज़ द ऑफिस, उसका ऑफिस कहाँ है, उन्हें कहाँ पे बैठा, पता ही नहीं है मेरे को। नोबडी नोस. तो मेरा बॉस अभी तो मेरा फ़ोन ही है, मेरा फ़ोन मेरा बॉस है। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया है, मतलब बेशक सर। ताकि ताकि ड्राइवर लोगों को न्याय मिल सके? अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. अ, यदि अगर किसी की एटिगा है तो दे माइट बी इन्वेस्टेड लाइक एटलीस्ट 10 lakhs इनटू इट, राइट. और जब रियलिटी, जब ऐप ओपन करके देखते हैं, उनको किराया मिलता है 250, 300, 500 रुपए का. उसमें से उन लोगों का कहना है कि आधा तो कंपनी खा लेती है और आधा डीजल को चला जाता है. तो हम लोग 20-25 रुपए में काम कर रहे हैं, हमारा कोई न्याय देने वाला है ही नहीं. तो मुझे ऐसा लगा कि आप इसके चेयरमैन हो और एक गीक के साथ मिले जुले हो, तो आपको ये सवाल पूछना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए कैसा, मतलब आप जैसे बता रहे हो कि मतलब ओनर तो मेरा बॉस तो मेरा फोन है, लेकिन जो सच में रियलिटी में उस फोन ऐप के ऊपर ट्रस्ट करके जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे, तो वो तो बेरोजगार एक्चुअली. वही बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरा, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, ओके, चलाने वाला मैं, मेरा फेयर डिसाइड करने वाला मेरा फ़ोन भी नहीं होता जो मेरा बॉस, मैं अभी बोल रहा हूँ। एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहा, मेरे पीछे बैक एंड मैकेनिज्म डिसाइड कर रहा कि मेरा किलोमीटर, मेरा मिनट पे कितना हो। वो नहीं है, वो ठीक ढंग का नहीं है। उसके लिए बोल रहे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग इन दिस मैटर, स्टेट गवर्नमेंट खुद रेट डिसाइड करे और कानूनी तौर पे लेके आए। जैसा कि वेरी एक गुड. मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस रिसेंटली निकला, 2020 था, उसको थोड़ा शेप आउट करके और बेटर करके थोड़ा 2025 सरकार ने लेके आए। मगर वो 2025 में कितने सारे प्रॉब्लम्स है। 8 साल के बाद गाड़ी नहीं चला सकते, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। 8 साल में तो गाड़ी का ईएमआई नहीं बिकता, नहीं, 10 साल तक तो ईएमआई चलते ही रहते हैं. तो वो गाड़ी कैसा ओन होती बोल के समझते। वो तो सरकार के अंदर जब पॉलिसी के अंदर जब डायलॉग होता, तो ये कितना कॉमन चीज समझने की चीज है जो सरकार नहीं समझ पा रही। दूसरा, प्लेटफॉर्म कंपनी जो है 50% तक आप रेट्स को गिरा सकते। मैं बोला रेट गिरा सकते, 2x से बढ़ा नहीं सकते। अरे क्यों बाबा, एक फेयर टिक्स करो दो। डिमांड एंड सप्लाई तो मार्केट में होगा, पर नॉट लेस देन, नॉट हायर देन। जैसे कि रिसेंटली आप देखेंगे, जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे इंडिगो के अंदर, उसके अंदर क्या निकाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? एक फेयर निकाला ना, नॉट लेस देन, नॉट मोर देन। ग्रेटर दैन, लेस बस। दैन, हाँ, तो आप फॉर्मूला. वो बीच का आंकड़ा लगा दो, उसके अंदर मार्केट खेले। तो आपने कभी ये बात आपकी यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट को लेके गए? लगातार गए, लगातार प्रेशर भी कर रहे, उसके ऊपर कानून के दायरे में लेके आने की भी कोशिश कर रहे। ये बहुत सारे चीज़ों पे तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना,
गवर्नमेंट खुद एक फेयर रेट तय करे और गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ऐप आए। ये सारे डिमांड्स हमारे वेरी गुड। लगातार सरकार से है। अब देखना है कि सरकार वादा तो करी, कानून बनाने का भी वादा करी, क्योंकि विदाउट कानून, बगैर कानून के ये सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज को हम बिल्ड नहीं कर सकते। बेंड नहीं कर सकते। कानून के दायरे में अगर चला के सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज को अगर जब हम देखेंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म कंपनीज को भी अकाउंटेबिलिटी रहती, ग्रेवियंस मैकेनिज्म बनेगा, सोशल सिक्योरिटी बनेगी। जैसे कि बहुत सारे स्कीम्स दे सकते हैं, ईएसआई, पीएफ, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन, ये सारे चीज एक वेलफेयर बोर्ड बन के आ सकते हैं, तो ये वर्कर का फायदा होने के चांसेस है। तो उसके लिए हम ज़रूर देखना पड़ेगा सरकार से। तो हम तो, ये हमारे अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है। ट्रू ओके, ट्रू ट्रू। ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो प्लेटफॉर्म कंपनीज थ्रो सरकार दे सकती है, सरकार थ्रो प्लेटफॉर्म कंपनीज दे रही है। तो करेक्ट। दोनों को मिल के भी दे सकते हैं, और दोनों की जिम्मेदारी है कि ये दायरे में, क्योंकि 10 साल से कोई प्लेटफॉर्म कंपनीज पे कानून नहीं बना। कानून नहीं बनने के जैसा, उसके लिए प्लेटफॉर्म कंपनीज मर्जी माफिक ड्राइवर को हो, डिलीवरी बॉयज को हो, चाहे अर्बन कंपनी वर्कर्स को हो, ये सारे जनों पे, पोर्टर जैसे जो ड्राइवर्स है, ट्रक जो छोटे छोटे हाथी गुड्स के कैरी चला रहे, ये वोटर सारे ड्राइवर। जनों को जो है उनका खून पसीना पी के लूट रही कंपनी। और एग्जैक्टली। प्लेटफॉर्म कंपनीज आप देख सकते हैं, आईपीओस के ऊपर आईपीओस खरीदते जा रहे हैं, अपना पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, मगर वर्कर का सोल ब्लेड की जो परेशानी, जो मेहनत, जो उसका खून पसीने का पैसा है, वो कहाँ पे है? उसके पैसे के लिए, उसके हक के लिए ही तेलंगाना गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन लगातार लड़ रही है, और लड़ेंगे, और लड़के उनको जीत दिलाएंगे। वेरी गुड। रिसेंटली आप देखे होंगे, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को हम लोग 2 दिन का एक स्ट्राइक कॉल करे थे। क्यों करे थे फ्लैश स्ट्राइक? उसका मतलब क्या था कि प्लेटफॉर्म कंपनीज जो लगातार फेयर्स कम करते जा रहे हैं डिलीवरी के। पहले डिलीवरी ऑर्डर पे 80 देते थे, 60 हो गया, फिर बाद में 40 हो गया, अभी 20 रुपये हो गया। 20 से जाके 5 रुपये, 10 रुपये, जीरो भी दे रहे। तो डिलीवरी बॉय की तकलीफ है, तो वो एक था। दूसरा मुद्दा क्या था डिमांड के अंदर, कि 10 मिनट का डिलीवरी हटा दो। मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे, लगातार जान जा रही वर्कर्स की, वो दूसरा डिमांड था। तीसरा डिमांड था कि उनके लिए एल्गोरिथम जो लगाया जा रहा, वो एल्गोरिथम हटा दिया जाए। फोर्थ क्या था, डिसेंट वर्किंग, ट्रांसपेरेंसी, डेटा का भी ट्रांसपेरेंसी हो, और उनका सोशल सिक्योरिटी बने। ये सारे एग्जैक्टली। जो बेसिक नीड्स थे हमारे, डिमांड स्टेट प्लेटफॉर्म कंपनीज थे। पर प्लेटफॉर्म कंपनीज ने देखा आपने किस तरीके से एक बेअदबी से बगैर जिम्मेदारी के स्टेटमेंट्स जोमेटो के जैसे सीईओज देने लगे। तो ये उनके लिए भी शोभा नहीं देती। हम एग्जैक्टली। कोई प्लेटफॉर्म कंपनी से एंटी नहीं होते, हम कोई प्लेटफॉर्म कंपनीज को गीग इकोनॉमी में डेवलप नहीं होना, देश की इकोनॉमी गिरना, बल्कि हमारा चैलेंज नहीं है। हमारा नहीं, चैलेंज है लेकिन कि यहाँ पे अब देखो, आप जैसे बात बता रहे हो, मुद्दे की बात बता रहे हो। आपने जैसे बताया कि इन लोगों का कल के दिन जहाँ पे कमीशंस आने की बात है, like few days back they used to give a little bit high return actually, but nowadays इतना प्रेशर्स है। बिकॉज आप देखो जैसे कि ब्लिंकिट आ गई है। ब्लिंकिट सेज कि 10 मिनट में डिलीवरी है। इसमें पिसता कौन है? ड्राइवर पिसता है। और 10 मिनट वहां से उठाकर यहाँ पे लाके डिलीवरी करने का जो टाइमिंग है, इस दरमियान बीच में यदि अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड ऐप बेस्ड जो भी कंपनी है, उस ड्राइवर का कोई जिम्मेदारी उठाती है? उनका कोई इंश्योरेंस या उनकी फैमिली का कोई इंश्योरेंस लेती है क्या? वही है, उसमें भी बहुत सारे लूप पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसकी रेटिंग अच्छी होना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, ब्राज़ील बोल के उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी हैदराबाद के अंदर देखो ना, 31 दिसंबर को जोमेटो का डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ। कौन जिम्मेदारी उठाई? कहाँ पे गई तुम्हारा जोमेटो का? 10 मिनट के अंदर डिलीवरी तो दे दिया, उसकी जान पे आफत आई, वो तो बचा, मगर जान से खेल के उन्हें बचा, मगर उसका प्रॉब्लम क्या है? आज भी हॉस्पिटलाइज हुआ, उसको प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम फेस करा, और उसका जो पैसा है, अभी तक हॉस्पिटल का पैसा जो है उसका खुद का पॉकेट से भरा, कैशलेस ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो क्या फ़ायदा, जो ड्राइवर के पास, डिलीवरी बॉय के पास खुद का पैसा नहीं है, वो जाके हॉस्पिटलाइज हो गए तो भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, तो वो कौन उठाने का है? तो आपकी प्लेटफॉर्म कंपनी 100 करोड़ के ऊपर जो पैसा लगाई उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ के लिए, जैसा मैंने कहा, आपके ट्वीट में कहा कि क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो मेरा सवाल वही है।
आपका जो प्रोजेक्ट है वो अटर फ्लॉप है। प्रोजेक्ट अगर जो है तो कहाँ है जेन्युइनिटी? जैसा 10 मिनट में क्विक डिलीवरी हो रही, 10 मिनट में आपका इंश्योरेंस वहां पे खड़े होना चाहिए, ना कि डिलीवरी बॉय अपना पॉकेट से पैसा डाले और उसका क्लेम करे, उसके बाद में उसको रिम्बर्समेंट ले। दिस नॉट Absolutely, राइट। it's very good questions. अच्छा, और एक बात, does this company like the company like Zomato, Swiggy treat worker as a employee or a contractor? How is their calculation? फ्रीलांस, मर्जी माफिक काम कर सकते हैं, मगर Freelance. ऐसा नहीं So है। what is the difference in legally? सी, देखो, क्योंकि जनरली मैं बोलता हूँ कि व्हेन वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन स्टार्टअप, यदि अगर हमारा खुद का लैब भी है और लैब में यदि अगर हमें एक दो लोगों को रखना भी है तो दे विल आस्क अस टू शो दी लेबर लाइसेंस, ठीक है। अभी स्विगी जोमेटो वाले तो मन मर्जी के हिसाब से 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी का देख रहे हैं। यदि अगर किसी का इतने सारे लोगों को आप चला के आप इतना बड़ा सेटअप बना के रख रहे हो और रेवेन्यूज आपका यदि अगर $1 बिलियन में यदि अगर हो रहा है, जी, तो ये आपको ऊपर लेबर लाइसेंस क्यों लागू नहीं करता है? इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए पहले तो वो वर्कर नहीं मानते। करेक्ट, हाँ। पहले ये सारे लोगों को पार्टनर माना जाता। जो भी प्लेटफॉर्म पे काम करो, सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज, कोई पार्टनर बोल रहा, कोई कैप्टन बोल रहा, कोई फ्रीलांस वर्क बोल रहा, अपने अपने मर्जी माफिक तय करके रखे। इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, नाम का पार्टनर है, काम का नहीं है। अगर जा उन्हें पार्टनर ही है, बताओ मेरे आईपीओ में मेरा शेयर कितना स्टेक है और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब कहाँ पे भी ये लिख के नहीं है, आप पार्टनर बोल के लिख के एक नाम एक दर्जा पार्टनर का देके ये नहीं बोल सकते कि आप कंपनी के पार्टनर है। तो अब जैसा दीपेंद्र गोयल है, जैसा ब्लिंकिट है, जैसा जोमेटो है, आप लोग सब इसके अंदर फाउंडर्स को फाउंडर्स है, एज ए वी आर पार्टनर्स, मगर हमारे को भी बोलना चाहिए आईपीओ कि दे दो मेरा हम लोगों को एक। मेरा हिसाब क्या है, मेरा शेयर किताब दे दो क्या है। हमारा भी। फिर हर चीज का तो अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है ना। तो ये कहीं ना कहीं नाम का पार्टनर है, काम का नहीं है। So let's go for worker right and government policies. Okay. What right should gig workers legally get in India? अभी तो गीग वर्कर को इंडिया के अंदर वर्कर के ऐसा जाना नहीं गया, जहाँ पे भी चार कानून बने, तेलंगाना से मिला के 5 स्टेट्स में हमने कानून बनाने के अंदर प्रयास किया, कहीं पे भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप तो नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है, कोई यदि अगर रैपिडो, ओला उबेर का कोई यदि अगर आदमी काम कर रहा है, तो उसको कोई लड़की नहीं देगा यार, तू तो कोई कहीं काम का नहीं है, तेरे को क्या बिजनेस देंगे? मतलब उसको तो रिश्ता ही नहीं मिलना चाहिए आपके कहने के हिसाब से। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म कंपनी जो सरकार कह रही है, जी। क्योंकि जैसा प्लेटफॉर्म कंपनी सरकार पे प्रेशर डाल के रखी, क्या बोल के, वी आर द जॉब क्रिएटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यों? हम्म। क्योंकि आप जॉब क्रिएटर बोलने की वजह से सरकार पे क्या हो गया, इतने हजारों जनों को हम रोजी रोटी दे रहे, तो रोजी रोटी के तरफ से इन लोगों को असर ना पड़े और उनके ऊपर इनके प्लेटफॉर्म कंपनीज पे असर ना गिरे, इसके लिए जो है इन लोग सब अपनी दुकान चलाने के लिए सरकार को डरा के धमका के, और वो सरकार भी जो है कहीं ना कहीं डरी हुई है प्लेटफॉर्म कंपनीज से, क्योंकि एक तरफ से वो जो बताना जो बता रहे तो जैसे कि बता रहे कि यदि अगर ये हम बंद कर देंगे तो तो हजारों लोग लोगों को। सड़क पे आ जाएंगे, रोजी रोटी नहीं रहेंगी, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा होने का भी नहीं है। ये नहीं तो दूसरी कंपनी, दूसरी नहीं तो और एक कंपनी, दिस इज नहीं, why don't लॉट the ऑफ government, अपॉर्चुनिटीज। I have a questions again, like what right should gig, what kind of rights should gig workers legally get in India? देखिए, एम्प्लॉय तो बनना है, आज नहीं तो कल भी वो लड़ाई है दूसरे का, जब कंपेयर टू अदर ओके, कंट्रीज। मतलब अभी आपके जो गिग फाउंडेशंस हैं, ये उन लोगों को एम्प्लॉय के तौर पे रखने के लिए, जैसे ईएसआई है, इंश्योरेंस है, इस तरह की सुविधा होना, उन लोगों को ट्रेनिंग होना। वही बता रहा हूँ मैं, अभी दूसरे कंट्रीज में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का डेफिनेशन क्लियर हो गया, बहुत सारे कंट्रीज में एम्प्लॉय माना गया और बहुत सारे जगह लीगल रिकग्नाइज मिला। इंडिया जैसे कंट्रीज में अभी नहीं मिला। ओके, नंबर वन। नंबर टू, इनके लिए जो अभी सरकार, जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम बना। ओके, और मे बी अब पब्लिक डोमेन में है ड्राफ्ट, ये महीने के जो है आप नेक्स्ट महीने के 15 तारीख तक उसके फीडबैक्स दे सकते, पब्लिक डोमेन के अंदर इनपुट्स दे सकते। इसके अंदर जो हमारे बेसिक जो डिमांड्स है, जैसे कि ईएसआई, पीएफ, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन, हम्म। एक्सीडेंटल, डेथ इंश्योरेंस, ये सुपर। सारे चीज़ें जो है जल्द से जल्द सारे गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर को मिलेंगे। वेरी गुड, ये ऐसे भी अगर हुआ
तो लोगों का जो जीवन होगा वो सुरक्षित नहीं, रहेगा। बेशक इसके ऊपर ही बहुत लंबी लड़ाई थी, हमारी लड़े और इसमें कामयाब हुए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जल्द से जल्द ये जो है होपफुल सारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज और होम बेस वर्कर्स को ये सारे स्कीम्स मिलेंगे। Okay, recently, state government announced a social security for gig worker. How impactful it is? सी इन तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कानून बनाया गया और पूरा बन के रेडी है, वो कैबिनेट भी अप्रूव हुआ, असेंबली नहीं गया पाया। शायद इस असेंबली में जाना था मगर वो नहीं गया पाया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कोड सोशल सिक्योरिटी का निकल के आने की वजह से वो लोग नहीं रखे, वो क्लैरिटी लेके रखेंगे बोल के लीगल ओपिनियन शायद कुछ ले रही सरकार। मेरी अब से अगला, लेकिन हम पॉइंट पे जाएंगे जो कि यूनियन एंड एक्टिविज्म एक्सपीरियंस के ऊपर। इट्स अ वेरी पावरफुल कंटेंट. How did you form TGPW and what challenge did you face from the companies and authorities? सी देखिए, चैलेंज तो है सरकार को मनाना, सरकार को दायरे में लाना, प्लेटफॉर्म कंपनीज के वर्कर्स के हक के लिए लड़ना, ये दो हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म कंपनीज कभी भी सरकार के दायरे में बैठ के बातचीत करने के लिए आज भी रेडी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है बोल के बताते। ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे पूरा कंट्रोल जो प्लेटफॉर्म कंपनीज का है हमारे वर्कर्स पे है, जैसा कि एल्गोरिथम कंट्रोल है, मेरा फेयर कंट्रोल है, हर चीज़ जो है प्लेटफॉर्म कंपनी ही कर रही। अब वो बोल रहा है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये सब चीज़ चल रही, मगर हम ये सारी चीज़ों को जो है जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। मगर यूनियन का स्ट्रगल, यूनियन की फाइट, यूनियन की जो लगातार कोशिश सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे हो, चाहे उनके वेलफेयर पे हो, चाहे उनके डेवलपमेंट पे हो, चाहे उनके स्किल्स अपग्रेडेड पे हो, ये सारे चीज़ करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और यूनियन का फ़र्ज़ बनता। अब देखिए ये यूनियन का अगर जो आप देखेंगे एक काम, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन टीजीपीडब्ल्यू का अगर जो आप देखेंगे, मोटा मोटा अगर जो आपको बताना, तो यहाँ पे वर्कर्स की वॉइस को और वर्कर्स के पेन को सुना जाता, ना कि एक लीडर कॉल करा, एक लीडर यूनियन कॉल दिया कि स्ट्राइक है, धरना है, प्रोटेस्ट है, यहाँ पे नहीं हो सकता। हमारे यूनियन में वर्कर्स का दर्द, वर्कर्स का पेन, उनका ही मेजॉरिटी ऑफ व्यू है। तो चाहे वो स्ट्राइक के लिए हो, चाहे वो कैंपेनिंग के लिए हो, चाहे हम लोग धरना के लिए हो, वॉट एवर जो भी डिसीजन लेना है, the 50% of above should be support that survey, we go move forward this thing। otherwise हम वो स्ट्राइक हो, चाहे वो बंद हो, स्ट्राइक के लिए कुछ भी हो, हम आगे का डिसीजन नहीं ले पाते। वेरी गुड. तो आप इतनी स्ट्रांग एक्टिविटीज कर रहे हो, तो कभी आपको कोई थ्रेटनिंग या अ, कोई माफिया आके आपको डराया है इस क्या विषय पे? करते डरा के, हाँ. अभी तो पूरा डर निकल गया, हाँ. जेल गए। कभी ऐसा हुआ है कोई जो ये पैसे वाले लोग आके आपको कभी डराए कि एक्टिविटी बंद कर बोल के, क्योंकि आप. ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, बट देखिए इनडायरेक्टली सपोर्ट लेके डराया जाता, जैसे कि पुलिस के धमकियों से केसेस बुक करते, 50 के केस के ऊपर केसेस मेरे पे थे, अभी तो 30 के करीब चल रहे केसेस, 2 बार जेल को भी जाके आए। क्यों ये सब सारे केसेस ऐसे? स्ट्राइक करने के ऊपर, ऑफिस के ऊपर आंदोलन करने से, फॉल्स स्टेटमेंट्स लगा दिए, कोई वायलेंस क्रिएट करे बोल के, ये सब ओके. मल्टीपल चीज़ों में अटकाने की कोशिश करते रहते, वो लगातार करने की कोशिश करे, मगर हो गया ना अभी, जेल भी गए, बेल भी मिला, सब जगह जाए आए, कोर्ट केसेस भी फिर रहे, एक तरफ से दूसरे तरफ से पुलिस स्टेशन भी जाके आए, तो ये केसेस हो गए, बाद में कोर्ट को फिरना, जेल को जाना एक आदत। एक्टिविज्म में तो बगैर ओ कोर्ट को रियली? गए तो या ऐसा जेल को ऐसा गए। ऐसा कोई सक्सेस स्टोरीज है जो रिसेंटली आपके साथ ऐसा अनहोनी हुई है जिसकी वजह से आप जेल जाके आ चुके हो, ऐसा नहीं, कोई? वही स्ट्राइक के केसेस में तो गए हम लोग, ऐसा कोई मेरा एक भी पर्सनल ऐसा कोई कोई ऐसा केसेस नहीं है। सक्सेस मतलब कि कोई स्टोरी वगैरह? नहीं, जब उबर के ओला के खिलाफ हम लोग भारत सॉरी उबर के खिलाफ हम लोग, ओला के खिलाफ हम लोग कुकड़पल्ली में एक स्ट्राइक कर रहे थे, एकदम पीस स्ट्राइक था, सुबह से शाम तक लंगे
हम लोग बैठे थे ओके ओके, गांधी प्लेट अवतार के गांधी जैसा। के जैसा। ओके हैं। तो प्लेटफॉर्म कंपनीज जो है शाम हो रही थी 6-7 बजे के टाइम पे जो प्लेटफॉर्म कंपनीज रुस में आए, तो पुलिस को थोड़ा भगाना करना करके जो है केसेस बुक कराते करते या कुछ ऐसी चीज के अंदर करके एक माहौल, डर का माहौल क्रिएट किया। अरेस्ट करते, वो करते, ये करते, तो थोड़ा एक माहौल उचका। तो उसके बाद हमारे लोग सुबह से शाम तक धूप में बैठे, बाद में भी कंपनी आके बात नहीं कर रही थी, मैनेजमेंट ओला का। तो उसके ऊपर हम लोग के मैनेजमेंट आए क्योंकि वो तो रिप्रेजेंटेशन कोई ले। करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो कोई मैनेजमेंट मतलब कोई ओनर नहीं रहता, ओनर कहाँ बैठा कभी पता नहीं रहता। ये जो आके आपसे जो बात करेंगे ये सारे के सारे एम्प्लॉय होते हैं। नहीं, एम्प्लॉई है बट एटलीस्ट देखिए, एक हक बनता। अब तो ऑफिसर्स भी नहीं है, ओला के उठा दिए। तो एक जिम्मेदारी बनती कि उसका रिप्रेजेंटेशन ले, उसकी बात सुने और ऊपर तक लेके जाए। यू आर नॉट डिसीजन मेकर नाउ, वेरी वेल, बट काइंडली टेक दैट रिप्रेजेंटेशन, द वैल्यू ऑफ वर्कर्स, द वो जो वर्कर है आपके ही, आपके ऑफिस के सामने बैठ रहे, धरना कर रहे और पीसफुल कर रहे, तो आप इसको समझना चाहिए। तो ये चीज़ों में हमारे साथ हुआ। उसके बाद में कोविड जैसे चीज़ों में भी हम लोग ने स्ट्राइक किया बोल के, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारी एकदम रोजी रोटी पे इफेक्ट गिरी थी। ये सारे केसेस लगा लगा के जो है कहीं ऑफिसर्स लगा दिए, तो कहीं प्लेटफॉर्म कंपनीज तो कहीं तीसरे थर्ड पर्सन से हमारे ही साथी ड्राइवर से लगाने की कोशिश। करेक्ट करेक्ट, ये ऐसा सब होता है, ऐसा झेल चुके हो आप। ये सब चला। अच्छा, अभी अगला सवाल ऐसा है कि एआई इम्पैक्ट, क्या लगता है कि आने वाले 10 साल में एआई इंडिया में आ जाएगा जिसकी वजह से ड्राइवर लोगों का जॉब जा सकता है ऐसा? देखिए, अभी एआई का कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया पे कितना असर पड़ सकता, मैं नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि इंडिया का कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत पॉपुलेशन है ही है यहाँ पर। और यहाँ पे जैसा कि बाहर आप देखेंगे, जो टेस्ला कार्स चल रहे हैं, रोड नहीं तो गाड़ी रो कहाँ से चलेगी? तो अच्छा। वहाँ पे एक किस्म का रोड की फैसिलिटी हो, बेसिक नीड्स है, बहुत सारे चीज़ों पे। अदर कंट्रीज में मैं भी जाता हूँ, जर्मन और मैं वहाँ पे देखता हूँ वहाँ के रोड्स और वहाँ का कल्चर, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो हिसाब से वहाँ पे चलता। मगर इंडिया के अंदर बैक टू बैक, नेक टू नेक ये ट्रैफिक, ये सब चीज़ों में आई डोंट नो कहाँ तक सक्सेस होता, कहाँ तक फेल होता। मगर हाँ, ज़रूर एज ए यूनियंस, एज ए लीडर्स, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके माहौल को भी हम पकड़ सके। टेक्नोलॉजी बदलना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैचअप करना चाहिए, मगर साथ ही साथ किसी की रोजी रोटी पे इफेक्ट ना हो। किसी की रोजी रोटी जाके अगर जब वहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा, उसके वजह से जो है एआई सब चीज़ कंट्रोल करने लगेगा, तो शायद मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ने में और पॉपुलेशन बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। जैसा अभी पॉलिटिकल डायलॉग अच्छा सुन रहे हैं अच्छा। आपके, पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, कि मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ाने में और बढ़ने में फायदा नहीं है, कम करने में तवज्जो देना चाहिए। क्योंकि रोजी रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से बेरोजगारी हमारे हाथ में है, बेरोजगारी को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि एआई हमारे ज़िंदगी को बदल सकता या टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी से वो कर सकती। टेक्नोलॉजी से ही हम बैक टू बैक फाइट करके, नेक टू नेक फाइट करके यहाँ पे तक आए और आगे भी जा रहे। देखना पड़ेगा कि एआई का वेट एंड सी इंडिया के अंदर किस तरीके से माहौल बनेगा, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल होगा। शायद बहुत सारे स्टेट्स अभी एआई के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे, बट देखना पड़ेगा कि गीग इकोनॉमी पे किस तरीके का असर देखने के लिए मिलता। मगर हम तो एज ए यूनियंस तैयार है, तैयार हो रहे भी, कि उस तरीके को भी हम किस तरीके से झेल हम सके, हैंडल कर पाए हैं। झेल सके, राइट। अच्छा, मेरा लेकिन अगला सवाल ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग अभी इकोनॉमी चल रही है अपनी, राइट, जिसमें जिस तरह से यूथ एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, राइट, तो एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ एम्प्लॉयमेंट, क्या नए यंग बच्चों का ये गीग के अंदर आके काम करना आने वाले समय के लिए सही है, या यंग बच्चों की करियर के हिसाब से सही है? देखिए, यहाँ पे यंग बच्चे जो अभी आ रहे प्लेटफॉर्म कंपनीज पे, ये लॉन्ग टाइम काम नहीं कर सकते। करेक्ट। करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं। जैसे कि एक ड्राइवर, एक डिलीवरी बॉय की अगर जो एग्जाम्पल ले, डिलीवरी बॉय 18 से 16 घंटे काम कर रहा,
और हैदराबाद जैसे, बेंगलुरु जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में बैक टू बैक ट्रैफिक के अंदर अपना शहद, पोल्यूशन के अंदर अपना शहद, हीट जैसे चीज़ों में अपना शहद, बरसात जैसे चीज़ों में अपना शहद, क्लाइमेट पूरा जो उसके ऊपर असर कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा, हेल्थ और वेल्थ दो चीज़ों से कमज़ोर होते जा रहा। अगर जो इस तरीके से की कमज़ोरी मिलेंगी तो डिलीवरी बॉय का लाइफ बहुत कम होता। दूसरा, ड्राइवर भी, ये ट्रैफिक के अंदर एक गाड़ी चलाना बहुत मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक आप देखते हैं, ब्रेक टू बैक टू बैक ट्रैफिक्स है ये शहरों में, टायर वन सिटीज़ में। और वैसे जगह घंटों घंटों जाम लग जाता, ट्रैफिक जाम, और वो जाम के अंदर रोजी रोटी नहीं बन पाती। तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं 14 घंटे से 16 घंटे एक ड्राइवर काम करके फिर जाके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो घर का माहौल भी जो है बहुत मेंटल फिजिकल स्ट्रेस रहता। क्योंकि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ना बच्चों को टाइम दे पाते, अपने वाइफ बच्चे जो है एज ए हस्बैंड वेट करते रहते कि ये हमारे फैमिली को टाइम दे पाए। जैसा कि संडे एक सबका टाइम है, संडे आए तो हम सब सोचते कि फैमिली के साथ बच्चों के साथ कहीं घूमने निकलेंगे, कहीं खाने निकलेंगे, या कहीं एक अच्छे माहौल के अंदर एंजॉय करेंगे, बट वो हो नहीं पाता क्योंकि संडे के दिन ही बिजनेस ज़्यादा रहता है ड्राइवर्स के लिए, करेक्ट। डिलीवरी बॉयज़ के लिए भी ज़्यादा बिजनेस रहता। सब जने आप घूमने में, फिरने में, खाने में रहते, उस टाइम पे मेरा डिलीवरी बॉय काम करने में रहता, उस टाइम पे हमारा ड्राइवर काम करने में रहता। एग्जाम्पल और एक उदाहरण बोलता हूँ, चाहे दसरा, दीपावली, रमज़ान, क्रिसमस, बकरीद, जो भी फेस्टिवल्स आए, हम सब तो फेस्टिवल मनाते, मगर क्या हमारा ड्राइवर डिलीवरी बॉय फेस्टिवल मना रहा? नहीं मना सकता, क्योंकि वो अपना इंसेंटिव के चक्कर में और अपने वहाँ पे 2 रुपए की आमदनी बढ़ के आ सकती, बल्कि एक आस में अपना टाइम, अपना फैमिली को भी बाजू रख के अपना टाइम अपने प्लेटफॉर्म कंपनी को देता। और वो क्या प्लेटफॉर्म कंपनीज उनके इंसेंटिव को टैग करके क्या रोजी रोटी दे पा रहे? नहीं देते। 100 में 1 जने को इंसेंटिव दे के आप बोल सकते कि सबको इंसेंटिव दे दिए, बोलना ये मुनासिब नहीं है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो डिलीवरी बॉय हो। अभी हम बात करेंगे समाज, असमानता और मानव अधिकार के ऊपर। क्या गिग वर्क गरीबी कम करता है या बढ़ाता है? देखिए, गीग वर्कर के बारे में अगर जा, गरीबी जो अभी है वो दूर नहीं जा सकती, क्योंकि ये सारे जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को यहाँ पे रखा गया, जो बेरोजगार है यहाँ पे रोजगार के लिए तलाश के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम नहीं तो दूसरा काम कर सकते थे, दैट इज क्योंकि मैं डिफरेंट। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि टेम्पररी इनकम के लिए ये जो बच्चे हैं अभी कॉलेज के बच्चे वगैरह, ये पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस जाना छोड़ दे रहे, और रैपिडो चला ले रहे, डिलीवरी का काम कर ले रहे। इससे तो मतलब वही बात हो गई कि मतलब पढ़े लिख के सोच समझ कर गरीबी लेके आना। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं। अगर जो आप पहले से अभी देखेंगे आप, पहले कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में क्या होता, एमएस के लिए, पीएचडीज के लिए जो भी स्टूडेंट्स जाते वहाँ पे, क्यों जाते? पढ़ने पढ़ते के लिए। हुए काम कर सकते, पार्ट टाइम है वो, अच्छा। उसको गीग वर्कर बोलते हाँ। हैं। और बाहर कंट्री में गीग वर्कर का मतलब एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में 2-3 घंटे गिटार बजाना, उसको गीग बोलते हैं। वेरी और गुड। इंडिया में 2 घंटे 3 घंटे कोई भी अपना प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता। ये जेन्यून है, ये सच बात है। ये बहुत सारे पैगाम जैसा रिपोर्ट उठा के देखो, वीवी गिरी जैसे रिपोर्ट उठा मतलब के। आप ये कह रहे हो कि जितने भी ऐप बेस के अंदर लॉगिन होते लोग, ये मतलब 2-3 घंटे से ज्यादा लॉगिन होते ही नहीं है। नहीं नहीं, 2-3 घंटे नहीं, बहुत घंटे लॉग इन होते, 2-3 घंटे के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रोजी रोटी नहीं काम कमा नहीं पाते। मिलता, ओके ओके ओके। एटलीस्ट 6 घंटे से 8 घंटे तो पार्ट टाइम का हो रहा है यहाँ पे, पार्ट टाइम की मतलब। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आंकड़े हैं कि वो आपको बता सकते हैं, पैगाम जैसा, वीवी गिरी जैसे, और बहुत सारे स्टडीज रिपोर्ट निकले कि कोई प्लेटफॉर्म पे 2-3 घंटे काम करने वाला मिल रहा नहीं, 8 घंटे के ऊपर काम करने वाले मिल रहे, ना कि उसके नीचे काम करने अच्छा। वाले। तो तो ये। उसके लिए अगर जा कोई, जैसे स्टूडेंट्स लगातार आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करने के लिए जो सोच बना रहे, और बनाए भी, 1-2 घंटे काम करे तो अपना पॉकेट मनी मिल जाता, कोई खर्चा निकल जाता। मगर आप ये बीच में देखेंगे उनके हम्म। बैकलॉग्स कितने हैं, उनकी पढ़ाई क्या हो रही, और क्या वो हाँ मेंटल एग्जैक्टली, फिजिकल आप स्ट्रेस के मेरी वजह से पढ़ पा रहे क्या। मेरी बातों पे आए आप।
मुझे तो ऐसा वही मेरा सवाल था वही कि है। ये छोटी सी इनकम की वजह से बच्चे जो है वो ऐप में बहुत सारे नियम होते हैं, रूल्स होते हैं कि आपको इतना लॉगिन करना, इतने डिलीवरी करना। ये डिलीवरी और लॉगिन के चक्कर में बच्चे पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और ये आज उनकी ऐसी नौबत आ गई है, ऐसा लोगों का कहना है। अच्छा, मैं ये बताइए कि क्या समाज गीग वर्कर्स को सम्मान की नज़र से देखता है? थोड़ा अभी अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। कस्टमर्स थोड़े अच्छे भी है, थोड़े बुरे भी है। सोसाइटीज़ आप देख रहे होंगे क्योंकि लिफ्ट के अंदर। रिसेंटली मैंने लाइक एमएसएन पे, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ नेटवर्क पे हमने एक न्यूज़ देखा था कि डिलीवरी बॉयज ऑलरेडी डिलीवरी करने के लिए आया है, वो घर में ही है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं ले रहा है। तो क्या समझे कि इसका मतलब गिग वर्कर को अभी भी लगता है आपको कि लोगों की नजरिया बदलनी पड़ेगी? नहीं, वही बता रहा हूँ मैं, वो एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब है। डिग्निटी ऑफ लाइफ बोलते हैं उसकी, है क्या नहीं। खरे आप खरे। अगर जब देखेंगे बड़े बड़े जो गेटेड कम्युनिटीज़ है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत अगर जहाँ हाईटेक वहां सिटी आने आप नहीं चले देते बोल जाएंगे, के सुना है मैंने। उनको लिफ्ट यूज़ नहीं करने देते। वो पाँच पाँच छः छः दस दस मंजिल चलते जाए। जाना। ये बहुत 10 मिनट का डिलीवरी का एक प्रेशर, आप 10 10 मंजिल जाओ, दो। हर एक के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और आपकी जाने। आपकी बातें सुनने के बाद दिल इतना पिघल जा रहा है क्योंकि ये गीग वर्कर की जो परेशानी है, ये ड्राइवर्स की जो परेशानी है वो सामने आपकी वजह से बाहर निकल रही है आज। और ये सच में ऐसा होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे जो होटल्स वगैरह है वहाँ पे देखे, वहाँ उनके लिए पिकअप सेंटर, पिकअप लोकेशन अलग ही रहता है। जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक आती है वहाँ पे उनको आने भी नहीं देते हैं। नॉट ओनली दैट, आप अगर जब देखेंगे वहाँ पे वॉशरूम यूज़ नहीं करने देते। आप बाहर बैठना है, बाहर अपने खुद की गाड़ी पे बैठना है, बारिश होती, धूप होती। तो ये सारे चीज़ें हैं। अगर जब आप जेप्टो जैसे, ब्लिंकिट जैसे अगर जब आप स्टोर्स को गए, तो वहाँ पे देखना आप डिलीवरी बॉयज़ पूरे अपनी गाड़ी पे ऐसा सो के रहते, या नहीं तो सीढ़ी, जो चढ़ने की सीढ़ी रहते वहाँ पे ऐसा बैठते रहते। यू नो एक बैठ के करने का, एक सोने का एक बेसिक नीड, बैठने की जगह प्रोवाइड नहीं कर सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज। ये बहुत दिक्कत की बात है। इंसान को वही बोल रहा हूँ, डिग्निटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए डिग्निटी होना चाहिए, हर एक की एक वैल्यू है, एक इज्जत है। इंसान है हम, किसी के गुलाम नहीं। एब्सोल्युटली। अभी अपना मेरा अगला सवाल है कि नेतृत्व और निजी विचारधारा, यानी कि लीडरशिप एंड फिलॉसफी। एक यूनियन लीडर के रूप में आपके नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, लाइक सोशल सिक्योरिटी, ईएसआई, पीएफ, हेल्थ, मैटरनिटी पेंशन जैसे स्कीम्स दिलाना, और उनके ऑसम। फंडामेंटल राइट्स को हम पूरे करना, और उनके हक के आवाज़ को बुलंद करना। और उनको जहाँ जहाँ पे दिक्कतें हो रही, प्लेटफॉर्म कंपनी से हो चाहे सरकार से हो, उसका रास्ता निकाल के उसकी सफलता के दिशा में कामयाबी करके लेके आके देना हम सबकी एक पहचान है। और उसकी काम के अंदर हम बड़े पैमाने पे सरकार से हो चाहे प्लेटफॉर्म कंपनी से भी हो, लड़ेंगे, जीतेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप तक कभी ऐसे, मतलब जब लोगों की सहायता के लिए जाते हो, ऐसा कहीं लगता है आपको कि आपने आपके हाथ से कहीं मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक से कुछ सीखा आपने? तो नहीं, देखिए, कभी भी क्या होता, बहुत सारे लीडर्स वन साइड सुनते। हम्म। कभी भी एक पक्ष नहीं सुनना चाहिए। अगर जब आपके पास कुछ ग्रेवेंस आया, आपके पास कुछ शिकायतें आई, तो दो तरीके का तबका रखना चाहिए, प्लेटफॉर्म कंपनीज का भी, एज ए ड्राइवर का भी, डिलीवरी बॉय का भी। और उसका रास्ता निकालना चाहिए। यूनियन बाजी का मतलब यही नहीं है कि जिंदाबाद बोलो, मुर्दाबाद बोलो। कभी भी उसके एंटी फाइट्स करो। द रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अवेयरनेस ऑल्सो। उनको उनके अवेयरनेस के बारे में भी बताना एज ए यूनियन हमारी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, क्या चीज़ है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल दिया नहीं जाता, फ़ोन के अंदर आई एग्रीड बोल के एक बार आप दबा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर खत्म। होता। हाँ। तो ये सारे चीज़ों में स्टडी करना, बताना, बोलना, और उनको बारीकी से समझाना। और क्या क्या गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, सेंट्रल के क्या बेनिफिट है, स्टेट के क्या बेनिफिट है, कानून लेके आना, कानून के दायरे में क्या क्या प्लेटफॉर्म कंपनीज को हम किस तरीके से हम
हमारे वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, ग्रेवियंस मैकेनिज्म कैसा ला सकते हैं, डेटा का ट्रांसपेरेंसी कैसा ला सकते हैं, एल्गोरिथम का कंट्रोल कैसा ला सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कैसा दे सकते हैं। ये सब एज ए यूनियन हमारी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को एज ए यूनियंस हम बहुत बखूबी निभाना ज़रूरी है कि हमारे पास वर्करों का एक भरोसा, एक ट्रस्ट है, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार से, प्लेटफॉर्म कंपनी से लड़े और उनको जीत हासिल करके दिखाए। और ये जीत एक यूनियन की जीत नहीं होती कभी भी। आप 25th और 31st की भी जीत देखेंगे, यूनियन इसके अंदर काम क्या करा, वर्कर की आवाज़ को सेंट्रल, स्टेट और प्लेटफॉर्म कंपनीज तक लेके जाने का काम किया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, यूनियन का हमारा जो काम करने का तरीका है, वर्कर्स के बीच में से वर्कर्स की परेशानियों को सोच समझ के और वर्कर की तकलीफों को वन टू वन कनेक्ट कराना। और प्लेटफॉर्म कंपनीज को हम लोग ने ओपन बोला वया टू मीडिया कि आप आइए, डिस्कशंस करिए, हम रेडी है आपसे डिस्कशंस करने के लिए। 5 दिन हम लोग ने वक्त दिया था, 25 तारीख से लेके 31st तक, मगर प्लेटफॉर्म कंपनीज आए नहीं, बैठे नहीं, बातचीत करे नहीं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं किया। उसमें 2,10,000 लोग पार्टिसिपेट हुए, 60% ऑर्डर डिले हुआ। ये हमारी एक सबसे बड़ी जीत है और हमारी आवाज़ प्लेटफॉर्म कंपनीज तक सुने आई। और वो प्लेटफॉर्म कंपनीज अपने में आपको बचाने के लिए पब्लिक में आके बयानबाजी करने पे उतरे, सोशल मीडिया पे। तो सोचने की चीज़ है। और थोड़े चीज़ों में, अल्फाज में बहुत डेटा भी बाहर आया, क्लियर डेटा निकल के आ गया किस तरीके से प्लेटफॉर्म कंपनीज अपने वर्कर्स को खिलौना बना के खेल रहे। और ये आवाम के बीच में आया, यही तो हमारी सक्सेस है, ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये फेल बोल के नहीं बोल सकती, ये बहुत बड़ा सक्सेस है वर्कर का है एज ए यूनियंस। एक साहसी और एक वायरल सवाल। क्या गीग कंपनियां अभी आधुनिक और डिजिटल स्वेट शॉप बन चुकी है? लगाम लगाना चाहिए। बगैर लगाम के कोई भी डिजिटलाइजेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो, चाहे डिजिटलाइजेशन पे हो, टेक्नोलॉजी पे हो, बगैर लगाम के और इसके कहीं पे भी आप कानून के दायरे में नहीं लेके आएंगे, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए, अगले आने वाले काम के लिए, सबके लिए तकलीफ उठाना पड़ता, सरकार को भी और वर्कर्स को भी। क्या नीति निर्माण में, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट करने में, राजनेताओं के ऊपर ये जो बड़ी टेक कंपनी है इनका भी कुछ प्रेशर होता है क्या? बेशक होता, प्लेटफॉर्म कंपनीज लगातार जो है डराते धमकाते तो रहते सरकारों को, उनका काम है। बट सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो उस थ्रेटिंग में ना आए, क्योंकि अगर जा एक मौका आप दे रहे तो दूसरा मौका आप छू जा रहे। जितना आपको प्लेटफॉर्म कंपनी इंपॉर्टेंट है, वर्कर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से प्लेटफॉर्म कंपनीज को भी रखे, एक तरफ से वर्कर को भी रखे, दोनों को बैलेंस करें, दोनों के लिए कानून बनाए, दोनों के लिए वेलफेयर बोर्ड, वेलफेयर स्कीम्स बनाए, और उनके सुख दुख में गवर्नमेंट एक मीडिएशन करे। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ट्राइपार्टेट, सरकार, प्लेटफॉर्म कंपनीज और यूनियंस, अगर यह ट्राइपार्टेट काम करेंगा तो ज़रूर स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, वर्कर्स का, प्लेटफॉर्म कंपनीज का, सबका फायदा हो सकता है। वेरी गुड। अगर आप यूनियन लीडर नहीं होते तो क्या करते होते खास ड्राइवर, करके? बहुत इजी बोला आज भी आज। काम कर रहे हैं और कल भी करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग गीक से ज्वाइन होने के लिए डरते हैं, क्यों? नहीं, आप एक मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है काम में। ओके। और इसके अंदर बहुत टाइम देना पड़ता, और इसके अंदर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बहुत आते। अच्छा, गीक प्लेटफॉर्म की ऐसी वो कौन सी सच्चाई है जो कंपनियां वर्कर्स को नहीं बताना चाहती? ऐसे अगर जब बोलना है तो बहुत है। अगर जब देखा जाए तो यही है कि हम रोजगार पैदा कर रहे, जो बोलते रहते हैं, तो रोजगार पैदा कर रहे, तो फिर आप बेरोजगार भी आप ही तो कर रहे। तो सवाल का जवाब उनसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से आप आईडी बना रहे, खोल रहे, रोजगार दे रहे, फिर वही प्लेटफॉर्म आप आईडी ब्लॉक कर रहे हैं। जैसा कि अर्बन कंपनी का वर्कर का एक एग्जांपल ले लो, जो दीदी घर पे आके ब्यूटिशियन का, स्पा का काम कर रहे, 50,000 रुपये डाल के अपना ब्यूटिशियन किट खरीद रहे, वो प्लेटफॉर्म कंपनी पे, अर्बन कंपनी के पास। वही अर्बन कंपनी का वर्कर का आईडी आप 1 महीने के अंदर अगर जब ब्लॉक कर दे रहे, तो वो 50,000 रुपये वेस्ट हो कितनी जाएंगे। मेहनत से लाए होंगे, कितनी तकलीफ से लाए होंगे, कहाँ कहाँ से उन्होंने हैंड लोन लिया होगा, या अपने हस्बैंड को मनाया होगा, या हस्बैंड नहीं है सो वाले सिंगल मदर्स जो है बाहर से पैसा लाए होंगे, कुछ ना कुछ करे होंगे ना।
तो उसकी कौन जिम्मेदारी उठाने वाला है? प्लेटफॉर्म कंपनीज तो नहीं उठाएंगे ना। आप तो ले लिए 50,000, ब्यूटिशियन का किट दे दिए, वो किट का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ 1 महीने के बाद में, उसका नुकसान कौन भरना है? तो ये प्लेटफॉर्म कंपनीज को समझना पड़ेगा किस तरीके से जो है आप वर्कर के साथ शोषण कर रहे हैं। चलिए, आज पूरी दुनिया में गीग वर्कर जो है ना डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है और इससे बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और लोग आपकी तरफ एक उम्मीद से, एक नज़र से ऐसे देखते हैं कि आप उनके आने वाली जो समस्या है उनमें लाइक सहायक बनोगे। और ये बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि एक एपिसोड में या एक सेशंस में इतने सारे हजारों सवालों का जवाब देना आपके लिए भी संभव नहीं है और मुझे भी पूछने के लिए शायद संभव नहीं है। हम इसे बरकरार रखेंगे। विल ट्राई टू कंटिन्यू द सेम एपिसोड अगेन। सो आप अब मैं भारत के या तेलंगाना, लेकिन जितने भी गीग वर्कर्स है, क्योंकि तेलंगाना में जो गिग वर्कर्स है वो सिर्फ तेलंगाना से ही नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर करके जो अदर अदर स्टेट से भी आके यहाँ पे रैपिडो, उबेर और फूड डिलीवरी का काम करते माइग्रेट हैं। वर्क। और मैक्सिमम मैं जहाँ तक समझता हूँ जो लाइक आजू बाजू के जो सिटी या खेड़े गांव से जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर करके इस फील्ड में बहुत है। अब इन लोगों की समस्या तो बहुत है, अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आते हैं और दिन भर में 100 सवा 100 रुपए का उनका बिजनेस भी नहीं होता है। और आधी से आधी कंपनी तो मतलब ये ऐप बेस्ड कंपनी वाले वापस लूट लेते हैं। और यदि अगर ऐसा कोई सिलसिला आपके पास आता है तो मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप उनकी समस्या जल्द से जल्द छुड़ाएं, उनके पास जाएं, उनकी समस्या, उनकी बातों को सुने और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। राइट, तो इस कार्यक्रम को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और आज कैसा लगा ये सारी बातें? यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर से शेख साहब को बुलाना चाहिए और उनका और भी सवाल यदि अगर पूछना चाहिए, आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे सवाल जो मैं भूल चुका हूँ या मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन आई शुड गो अहेड एंड आस्क नेक्स्ट टाइम। और यदि अगर आप कुछ सजेशंस कहना चाह रहे हो, यू वांट टू सेंड एनी मैसेज, तो आप लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।